ایک بار پھر سے خداوند یسوع مسیح کے انتہائی معتبر، مقدم، محترم اور مبارک نام میں آپ سب کو سلام پہنچے۔ پیشتر اس سے کہ میں بھول نہ جاؤں، سب سے پہلے میں آغاز مبارکباد سے کرنا چاہتا ہوں تمام فادرز کو ہیپی فادرز ڈے۔ پچھلے ہفتے ایک ایسی کہانی سے واسطہ پڑا جس نے مجھے ایک بہتر انسان اور باپ بننے کا چیلنج دیا، اور دل جو تھا وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو گیا۔ قیدیوں میں کام کرنے والی ایک خادموں کی ٹیم نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح قیدیوں کو ان کے عزیز و اقارب سے دوبارہ منسلک اور قریب لایا جا سکتا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ قیدی مدرز ڈے اور فادرز ڈے پر اپنے والدین کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر ان کارڈز کو سجائیں اور پھر ان کارڈز کو ان کے والدین کی طرف بھیجا جائے۔ مئی کے مہینے میں خادموں کی ٹیم اپنے پروگرام سے بہت خوش تھی اور انہیں بڑا دھچکا لگا تھا، کیونکہ قیدیوں نے حیرت انگیز کام کیا۔ ہر قیدی نے دکھایا کہ وہ اپنی ماں سے کس قدر محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ پروگرام بہت کامیاب ہوا، لیکن جون کے مہینے میں یہی ٹیم ان قیدیوں سے فادرز ڈے کے موقع پر اس قسم کے رد عمل کی توقع رکھتی تھی، لیکن مشکل سے کوئی بھی قیدی کارڈ بنانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ اس کہانی نے ایک حقیقت کو واضح اور ثابت کر دیا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ غیر حاضر اور غیر متعلقہ باپوں اور ان لوگوں میں بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے جو جرم کی دنیا میں پرورش پاتے ہیں۔ قیدی اپنے فادرز کے لیے کارڈ اس لیے بنانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے فادرز کی ان کی زندگی میں شمولیت یا تو بہت ہی کم رہی ہے یا بالکل نہیں رہی۔ تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ گھر میں موجود مضبوط اور محبوب یعنی پیار کرنے والا باپ اپنے بچوں کو کامیاب زندگی گزارنے، تعلیم دلانے، مستقبل بنانے، رشتہ ازدواج میں منسلک کرانے میں زیادہ بہتر معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وفادار اور محبت کرنے والے باپ کی غیر موجودگی بچوں میں ایسے مواقع بڑھا دیتی ہے جن میں بچوں میں تحریک کی کمی ہو جاتی ہے، وہ غیر صحت مندانہ طرز زندگی اپنا لیتے ہیں، جرم زیادہ کرتے ہیں اور عام طور پر افسردہ زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ گھروں میں باپ کی موجودگی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ بائبل مقدس بچوں کی پرورش اور خاص طور پر باپ کے متعلق بہت زیادہ بات چیت کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بائبل میں 1100 مرتبہ باپ کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ان حوالہ جات میں باپ کے لیے ایسی ہدایات موجود ہیں جن کے ذریعے حکمت میں باپ جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ان حوالہ جات میں فادرز کے لیے مثبت اور منفی مثالیں بھی موجود ہیں جو بچوں کی پرورش کے مسائل میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ ان حوالہ جات میں خدا کو باپ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ خدا نے باپ کا خطاب اپنے لیے خود چنا ہے تاکہ یسوع اور اس کے وسیلہ سے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو بیان کر سکے۔ خدا کوئی بھی خطاب چن سکتا تھا، مگر وہ باپ کہلوانا پسند کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے سب سے زیادہ مرتبہ اسی باپ کی اصطلاح اور خطاب کو اپنے باپ کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس خطاب سے ہمیں خدا کے دل کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ زمینی باپوں سے کیا توقع رکھتا ہے۔ تمام زمینی باپوں کو آسمانی باپ کی مانند بننے کی ضرورت ہے، مگر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح بہتر مبارک باپ بن سکتے ہیں؟ آج ہم زبور 112 میں سے دیکھیں گے جو ہمیں ایسے انسان اور باپ بننے کا خاکہ دیتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ جیسے ہم انسان اور باپ بنے۔ ہم اس زبور میں 4 سادہ اور بابرکت اصول سیکھیں گے جو ہمیں بابرکت باپ اور بابرکت انسان
बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, बाबरकत बाप के लिए बाबरकत असूल। बाबरकत बाप बनने के लिए कौन से असूल हैं, बाबरकत असूल जिन्हें अपनाया जा सकता है। हर बाप बाबरकत बाप बनना चाहता है, लेकिन ज़बूर 112 हमें सिखाता है कि बाबरकत बाप कैसे बाबरकत बन सकता है। बाबरकत बाप 4 बाबरकत असूल इख्तियार करके अपनाकर वो बाबरकत बाप बन सकता है। तो आज बापों के दिन के ताल्लुक से मैं आपके साथ इसी मौजू पर बात करूंगा कि बाबरकत बाप के लिए बाबरकत असूल कौन से हैं। पहला असूल ये है कि बाबरकत बाप बनने के लिए, बाबरकत बाप ठहरने के लिए बाप को खौफदार बनना है। हमें खौफदार बनना है। ज़बूर 112 की जब हम पहली 3 आयात का मुताला करते हैं तो ज़बूर 112 की पहली 3 आयात के अंदर ये अल्फाज हमें लिखे हुए मिलते हैं। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। यहाँ बाबरकत बाप के लिए और बाबरकत इंसानों के लिए पहला असूल ये है कि वो खौफदार बने। इस ज़बूर की पहली आयत पूरे ज़बूर का माहौल बनाती है और खुलासा करती है। ये आयत बताती है कि खुदा हमें किस तरह का बाप बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम इंसान होते हुए घुमंडी ना बने, बल्कि खुदावंद की हम्द करें। खुदावंद की हम्द एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत आम है। ये हालेलुया का तर्जुमा है। खुदा चाहता है कि बाप खुदावंद से डरें और उसके हुक्मों में मसरूर रहें। दूसरे अंदाज में ये आयत हमें ये बताती है कि खुदा की बरकत पाने के लिए ज़बूर नवीस सिखाता है कि खुदा की बरकत पाने के लिए और तमाम चीजें पाने के लिए लाजिम ये है कि हम खुदा की इज्जत करने वाले हों, खुदा से डरने वाले हों। खुदा से डरने का मतलब खुदा की इज्जत करना है और उसके हुक्मों पर अमल करना, यानी उसके हुक्मों में मसरूर होना जरूरी है। ये पहला असूल जो हम ज़बूर 112 में सीखते हैं वो ये है कि ऐ बापो, अगर आप और आपके बच्चे बाबरकत और कामयाब बनना चाहते हैं तो खुदावंद का खौफ रखें और अपने आप को सिखाएं कि वो काम करें जो खुदा करने को कहता है। ये सादा मगर मुश्किल हिदायत और नसीहत है। मुझ समेत तमाम बापों की सोच ये होती है, अक्सर औकात हम ये कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे और हमारे खानदान के लिए सबसे बेहतर क्या है। पहली बात जो खुदा हमसे कहना चाहता है वो ये है कि हमें इतने फन्ने खान बनने की जरूरत नहीं है। खुदा ये कह रहा है कि फन्ने खान मत बनो और ये मत सोचो कि तुम अपने आप से सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को खुदा के ताबे करते हुए उसका खौफ करो और उस वक्त में भी उसकी हिदायत पर अमल करो जब वो तुम्हारी समझ से बालातर हो। अपनी ही निगाह में दानिशमंद मत बनो, बल्कि खुदा को इजाजत दो कि वो तुम्हारे कदमों की रहबरी और रहनुमाई करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आयत 1 और 2 का वादा आपकी जिंदगी में सच्चा साबित होगा। हमारी नस्ल और औलाद मुबारक होगी। हमें कलाम में जिक्र मिलता है, यानी खुदा की बरकत से हम महजूज होंगे, हम भी और हमारी औलाद भी। अगर हम बाइबल में दी गई खुदा की हिदायत पर अमल करें, उनमें मसरूर रहें, तो कलाम में लिखा है कि मालो दौलत हमारे घर में होगी। मैं यहाँ बहुत ही मोहतात अंदाज में इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक माली बरकत के साथ है। मैं खुशहाली की अंजील सुनाने वालों की तरह ये नहीं कहता कि अगर आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो आप मालदार हो जाएंगे। इसके बरक्स मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से मसीही रुपए पैसे के ताल्लुक से बाइबली हिकमत से नावाकिफ है।
बाइबल मुकद्दस माली असूलों के ताल्लुक से तालीम से भरी पड़ी है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस हमें इल्म और हुनर में महारत की अहमियत सिखाती है। बाइबल हमें मेहनत करने, फजूल खर्ची ना करने, बचत करने, कारोबार में दयानतदारी इख्तियार करने की तालीम देती है ताकि हमारे अफसरान हम पर भरोसा करें। इसके साथ साथ बाइबल हमें सखावत और दया की जो कि हमारे ईमान का इजहार है, इसका भी सबक देती है। बाइबल हमें कर्ज देने में हिकमत सिखाती है और बुरी आदत से बचने की तालीम देती है जो कई बार गुर्बत का सबब बनती है। बाइबल मानो दौलत के मुतालिक हिदायत से भरी पड़ी है जिन पर अमल करके हम गुर्बत से बाहर आ सकते हैं, जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुआशी मंसूबा बना सकते हैं। मगर बहुत से मसीही इन माशी वादों से महजूज नहीं होते। इसकी वजह यह है कि वो खुदावंद के हुक्मों में मसरूर नहीं रहते। लिहाजा बहुत से लोग आयात 2 और 3 की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि खुदा अपने वादों में वफादार नहीं, बल्कि हम इन तालीमात और हिदायत पर अमल नहीं करते जो खुदा हमें देता है। यानी ये कि हम खुदावंद से डरें और उसके हुक्मों में मसरूर रहें। लिहाजा पहला असूल जो हमने सीखा, बाबरकत बाप के लिए बाबरकत असूल, जो पहला असूल था वो ये है कि खौफदार बने। दूसरा असूल ये है कि बाकिरदार बने। ना सिर्फ ये कि खौफदार बने, खुदावंद का खौफ रखें, बल्कि बाकिरदार बने। आइए आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 8 को हम पढ़ते हैं और यहाँ पर हमें किरदार यानी सिफात के मुतालिक इस ज़बूर में बातचीत मिलती है। आयत नंबर 4 से यूं लिखा है, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादिक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी, सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। बाबरकत बाप बाकिरदार बाप होता है। बाबरकत बाप आसमानी बाप के किरदार यानी खूबियों और सिफात को अपनाने की भरपूर कोशिश करता है। आइए देखते हैं कि इन आयात में मर्द खुदा की किन किन किरदारी खूबियों का जिक्र है। यहाँ पर मर्द खुदा के ताल्लुक से, मुबारक मर्द के ताल्लुक से कई खूबियों का जिक्र किया गया है। देखा है कि वो रहीम व करीम है, वो सादिक होता है, वो रहम दिल है, कर्ज देने वाला है, सादतमंद है और उसका दिल कायम हुआ करता है। ये तमाम किरदारी सिफात और खूबियां हमारे आसमानी बाप में कामिल तौर पर पाई जाती है। अगरचे जमीनी बाप इनमें कामिल तो नहीं हो सकता, मगर कामिल होने की कोशिश तो जरूर कर सकता है। ऐ बापो, याद रखें कि आपके बच्चे आपको रहीम व करीम देखना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप उस वक्त मेहरबान हो जब मेहरबानी आपके बच्चों का हक ना हो। जब कभी आपके बच्चे गलती करें तो उन्हें सख्त मलामत की जगह जोर की जप्फी और हौसला अफजाई करें। आपके बच्चे ये भी चाहते हैं कि आप उनकी माँ के साथ भी मेहरबानी का रवैया रखें। ऐ बापो, गौर से सुनिए, सबसे बदतरीन काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि उनकी माँ से मोहब्बत ना करें। इससे वो परेशान हो जाएंगे, उन्हें चोट लगेगी, ये राह उन्हें नाकामी की तरफ ले जाएगी। अगर आपकी औलाद में से आपकी औलाद में सिर्फ बेटे ही हैं यानी लड़के ही हैं मेरी तरह, तो याद रखें वो भी आपकी तरह के गुनाह का शिकार हो जाएंगे। अपने आसमानी बाप की तरह रहीम व करीम हो। ऐ मर्दो और ऐ बापो, रहम दिली से भरे रहो, मोहब्बत के इजहार से ना डरो। आपके बच्चे आपको दूसरों के साथ रहम दिली करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप दूसरों से और खुदा से मोहब्बत नहीं करेंगे तो वो मोहब्बत करना नहीं सीखेंगे। ऐ मर्दो, सादिक बनो।
ऐ बापो सादिक बनो। इसका मतलब ये है कि गुनाह को शिकस्त देने के लिए पूरी कोशिश करो। आपके बच्चे आपको गुनाह के साथ लड़ते हुए देखना चाहते हैं, उनकी माँ और दूसरों के साथ लड़ते हुए देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप गुनाह से लड़ें। इसका मतलब ये भी है कि आप बददियानत ना हो, गंदी और नाजेबा जबान मत इस्तेमाल करें, बुरी आदत, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, फहश निगारी, ताशबाजी से जंग करें। इन बुरी आदतों से लड़ें। सादिक बनने के लिए गुनाह और बुरी आदत से लड़ें, ताकि आपके बच्चे आपसे इन गुनाहों और बुरी आदतों से लड़ना सीखें। ऐ बापो और ऐ मर्दो सादतमंद बनो, यानी नेक बने। नेकी के मुतालिक हमने गलतियों के खत में सीखा था कि ये रूह का फल है। नेक होने का मतलब ये है कि आप ऐसी जिंदगी गुजारे जो काबिल इज्जत हो, वहशियाना और बेइज्जती का बायस ना हो, आपका इखलाकी मयार बुलंद हो। इसका इजहार सबसे बेहतर उस वक्त होगा जब आप अपनी बीवी से मुखातिब होंगे। मैंने हमेशा कहा है और मरते दम तक कहूंगा कि बाइबल शोहरों को कभी ये इजाजत नहीं देती कि वो अपनी बीवियों को मारे और मारकर उनकी तरबियत करें। पहला पतरस 3:7 में बाइबल सिखाती है कि जब शौहर अपनी बीवी के साथ अक्लमंदी से बसर नहीं करते और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत नहीं करते तो दुआएं रुक जाती हैं। खुदा चाहता है कि आप अपनी बीवी से वैसे ही मोहब्बत करें जैसे खुदा ने आपसे मोहब्बत की है। अपना कारोबार रास्ती से करें, आयत नंबर 5 के दूसरे हिस्से में लिखा है। और अपना कारोबार रास्ती से करने का मतलब यह है कि अपने काम से काम रखें। लफ्ज रास्ती का मतलब अक्लमंदी से काम लेना है। बहुत ज्यादा मत बोलें। अपने छत या गली में खड़े होकर दूसरों के मामलात पर गपबाजी ना करना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको किसी मामले में मशवरत दरकार है तो उसके पास जाएं जो दानिशमंद हो और आपकी रहनुमाई सही तौर पर कर सके। ऐ मर्दो, ऐ बापो, आयत नंबर 7 के दूसरे हिस्से में लिखा है, कायम दिल रहो। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। मुबारक आदमी खुदावंद पर तवक्कुल करता है और तवक्कुल करने से उसका दिल कायम रहता है। कायम रहने का मतलब है कि जब जिंदगी में नई चीजें आए तो इधर उधर के हचकोले मत लें, अपने जज्बात को बेकाबू ना होने दें। ऐसे मेहनती बने कि जब आपके बच्चे मसाइल का शिकार हों तो वो बगैर फिक्र किए आजादी के साथ आपके पास आ सके। हमें अपने आसमानी बाप की तरह अपने खानदान का लंगर बनना है, ऐसा लंगर जो सबको संभाले रखता है, चाहे हालात साजगार हो या दुश्वार गुजार या मुश्किलात हो। लंगर का काम संभालना है, हमें लंगर बनना है। सो हम सीख रहे हैं कि बाप के लिए बाबरकत असूल क्या है। पहला असूल हमने सीखा कि वो बाबरकत बाप खौफदार बनते हैं, मुबारक है वो जो खुदावन से डरता है। फिर दूसरा असूल हमने सीखा कि बाबरकत बाप कैसे बन सकते हैं, बाकिरदार बनने से, खौफदार बनने से, बाकिरदार बनने से। और तीसरा असूल हम ये सीखते हैं वफादार और हौसलादार बनने से, वफादार और हौसलादार बनने से। आइए जरा आयत नंबर 4 से लेकर 8 को एक नजर दोबारा से पढ़ते हैं। आयत नंबर 4 से लेकर 8 में ज़बूर नवीस जो है वो कहता है, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादिक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बेकरार है, वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। हमें तीसरा असूल ये मिलता है इन आयात में कि बाबरकत बाप बनने के लिए हमें वफादार और हौसलादार बनना है। इस ज़बूर में ये तीसरा असूल है कि बापों को वफादार और हौसलादार बनना है। याद रखें
कि बाइबल मुकद्दस कोई ऐसी किताब नहीं जो सिर्फ अच्छा महसूस कराती है, जो ये कहती है कि बस ईमान रखो और सब कुछ ठीक और सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस गुनाह के खतरात और जिंदगी के चैलेंजेस का असली नक्शा खींचती है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि बेहतरीन और दीनदार बाप भी दुखों, दुश्वारियों, मुसीबतों में से गुजर सकते हैं। बाइबल ऐसे दीनदार मर्दों और बापों की कहानियों और मिसालों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने आप को जिंदगी के सदमात और जिंदगी की मुश्किलात में ऊपर उठाया। मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये ज़बूर बताता है कि हम रास्तबाज होते हुए तारीकी में से गुजर सकते हैं। चौथी आयत के पहले हिस्से में लिखा है, बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी होगी जिनमें आयत नंबर 6 के मुताबिक हम जुम्बश खाएंगे, यानी हम हिल जाएंगे। बाज़ औक़ात हमें आयत नंबर 7 के पहले हिस्से के मुताबिक बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। यहाँ तक कि आयत 8 के दूसरे हिस्से में लिखा है, हमारे मुखालिफ भी होंगे, लोग हमारी मुखालफत भी करेंगे। इन चीजों का जिक्र हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हौसला दिलाने के लिए किया गया है। हमें यशुआ की तरह मुश्किलात के लिए तैयार रहना है। हमने फैसला करना है कि हम किसकी खिदमत करेंगे। जब जिंदगी में चैलेंजेस आए तो हमें वफादार और हौसलादार बनते हुए खुदावंद पर तवक्कुल करना है। आयत नंबर 7 के दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है हमें बुज़दिल नहीं होना और ना ही बेदीन लोगों के पास जाकर अपने मसाइल को हल करना है। ऐ बापो, आपके बच्चे मुश्किल अयाम में आपको खुदावंद में वफादार और हौसलादार देखना चाहते हैं। ना सिर्फ खुदावंद के वफादार और हौसलादार, बल्कि वो चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के और अपनी बीवी के भी वफादार और उनके लिए हौसलादार बने। वो देखना चाहते हैं कि आप बाइबल खोलें, सोने से पहले उनके लिए और उनके साथ दुआ करें। आपके बच्चे आपको चर्च जाते या ऑनलाइन इबादत करते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको गीत गाते हुए खुदावंद की हमदो तारीफ करते हुए देखना चाहते हैं। आपका खुदावंद से बढ़ता हुआ रिश्ता और ताल्लुक उनके अंदर खुदा के लिए वफादारी और हौसलादारी का सबब बनेगा। याद रखें, वफादारी को बढ़ाती है और आपकी हौसलादारी उनकी हौसलादारी को बढ़ाने का सबब बन सकती है। आइए अब इस ज़बूर की आखिरी 2 आयत को पढ़ते हैं और हम आखिरी यानी चौथे असूल पर बात करते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि बाबरकत बाप के लिए बाबरकत असूल क्या है। बाबरकत बाप किस तरह बाबरकत बन सकता है। हमने पहला असूल सीखा, खौफदार बने। हमने दूसरा असूल सीखा, बाकिरदार बने। हमने तीसरा असूल सीखा, वफादार और हौसलादार बने। आज फादर्स डे के दिन जब हम इस ज़बूर की आखिरी आयत पर बात करते हैं तो मैं आपसे आखिरी असूल शेयर करना चाहता हूँ। आइए आयत नंबर 9 और 10 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा असूल हमें क्या मिलता है। इस ज़बूर की आखिरी 2 आयत में ज़बूर नवीस यूं लिखता है, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा और दांत पीसेगा और घुलेगा, शरीरों की मुराद नाबूद होगी। चौथा असूल जो हमें यहाँ पर मिलता है वो ये है कि हम मिसालदार, नमूनादार बने। इस ज़बूर समेत पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने बच्चों को अपने अल्फाज की बजाय अपने अमाल और अपनी मिसाल के जरिए सिखाएं। मिसाल देना कई बार बहुत आसान होता है, मगर मिसाल बनना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है और वो कहावत कुछ यूं कहती है कि मोर इज कॉट देन टॉट। मोर इज कॉट देन टॉट। इस कहावत का मतलब यह है कि आपके बच्चे जो कुछ आपको करते देखते हैं वो उन पर ज्यादा असरअंदाज होता है बनिस्बत उसके जो आप कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आपके अमाल आपके अल्फाज से
زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کی جگہ اور معاشرے میں زیادہ اثر و رسوخ نہ رکھتے ہو، مگر یاد رکھیں کہ باپ ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ با اثر شخصیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پارٹی میں مہمان خصوصی نہ ہوں، مگر آپ اپنے بچوں اور خاندان میں مہمان خصوصی ہوا کرتے ہیں، جن پر ہمیشہ آپ کے بچوں کی اور لوگوں کی نظر لگی رہتی ہے۔ چاہے آپ کی زندگی کا نمونہ اچھا ہو یا برا، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر شخص کی پرورش ضروری نہیں کہ شفقت برے باپ کے زیر سایہ ہوئی ہو۔ کچھ لوگ بچپن ہی سے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شفقت نہیں ملی ہے، آپ بچوں کو شفقت دے سکتے ہیں۔ اس زبور کا مبارک آدمی اور مبارک باپ ہمارے لیے نمونہ اور شاندار مثال قائم کرتا ہے۔ وہ شاندار نمونہ اور شاندار مثال بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کن چیزوں میں وہ مثال ہے، کن چیزوں میں زبور نویس جو ہے وہ شاندار نمونہ ہے؟ وہ صداقت، رحم دلی، سعادت مندی، خداوند سے ڈرنے اور خداوند پر توکل رکھنے اور محتاجوں کی مدد کرنے۔ آیت نمبر 9 میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ محتاجوں کی مدد کرنے میں اپنے بچوں کے لیے، بلکہ آیت نمبر 10 کے مطابق شریروں کے لیے بھی زبردست مثال اور نمونہ ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے؟ آج اپنے اعمال کے ذریعے آپ اپنے خاندان کی پوری تاریخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کی تاریخ کو ایسی سمت میں لے جا سکتے ہیں جو کئی نسلوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ مگر جس طرح یہ زبور پہلی ہی آیت میں کہتا ہے، اور اس زبور کا آغاز خداوند کے خوف، جو خداوند سے ڈرتا ہے، کے الفاظ سے ہوتا ہے، اور اس کے حکموں میں مسرور رہنے سے اس زبور کا جو وہ آغاز ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ باپوں کو معلوم ہے کہ جب میں اس پیغام کو دے رہا ہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے خود بھی کام کرنا ہے۔ یہ پیغام میں صرف آپ کو نہیں سنا رہا، آپ سے زیادہ یہ پیغام میرے لیے ہے۔ جن اصولوں کا اطلاق میں نے آپ پر کیا ہے، وہی اصول پہلے ان کا اطلاق مجھ پر ہوتا ہے۔ آج یہ اصول میرے لیے بھی ہیں۔ مجھے بھی خود ہی کا انکار کر کے گناہ سے لڑنا ہے، مجھے بھی نیکی حوصلہ مندی میں آگے بڑھنا ہے، اور دل میں قائم رہتے ہوئے خداوند پر توکل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے، مثال بننا ہے۔ اگر آپ اس جگہ نہیں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تو بے حوصلہ نہ ہو۔ زبور 112 کے آدمی کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، آسان قدم اٹھا کر کوشش کریں۔ ہر روز بائبل کا ایک باب پڑھیں۔ بائبل پڑھنے سے پہلے اور بعد میں مختصر دعا کے ذریعے جو ہے وہ آغاز کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں یا بیوی کا کوئی گناہ کیا ہے یا انہیں دکھ دیا ہے، ان سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے آغاز کریں۔ آپ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ جو ذرائع اس میسج کے نیچے لنک میں دیے گئے ہیں انہیں ضرور پڑھیں۔ اگر آپ روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ آپ کی مدد کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں اور آپ کو بالکل نئے سرے سے چیزوں کو شروع کرنا ہے۔ آپ کو یسوع سے درخواست کرنا ہوگی کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو گناہ کی شرمندگی سے بچائے۔ یسوع نے آپ کے لیے اپنی جان دی تاکہ آپ کی رسائی آسمانی باپ تک ہو سکے۔ خداوند نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ان کو پکاریں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اپنا روح آپ کے باطن میں، آپ کے دل میں ڈالے گا، جو آپ کو تبدیل کرے گا۔ دعا کے ذریعے آج یسوع کو پکاریں، اس سے کہیں کہ میری مدد کر۔ خدا آپ کو وہ آدمی اور باپ بننے میں مدد کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ اس کے پاس جائیں، اس سے بات چیت کریں۔ آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، کیا آپ بابرکت انسان
और बाबरकत बाप बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो ज़बूर 112 हमें वो उसूल सिखाता है कि हम किस तरह बाबरकत इंसान और बाबरकत बाप बन सकते हैं। हमें 4 बाबरकत असूल सीखने होंगे। बाबरकत इंसान और बाबरकत बाप बनने के लिए हमें खौफदार बनना है, खुदावंद से डरना है, उसके हुक्मों में मसरूर रहना है। हमें बाकिरदार बनना है, खुदा जैसी किरदारी सिफात को अपने अंदर अपनाना है, खुदावंद की मानिद बनना है। हमें वफादार और हौसलादार बनना है। और चौथा असूल हमने सीखा कि हमें मिसालदार यानी नमूनादार बनना है। क्या हम अपने ख़ानदान के लिए नमूना है? आज बाप होते हुए क्या हम खुदावंद से वफादार और हौसलादार हैं? क्या हमारा किरदार बुलंद है? क्या हम बाप किरदार हैं? हम किससे डरते हैं? क्या हम खुदावंद के खौफदार हैं? आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए। उन्हें हमें ज़िंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर रहते हुए तमाम तर बरकतों से महसूस किया। ऐ खुदावंद, तूने अपनी किसी नेमत को हमसे बाज नहीं रखा। आज ये वक्त दिया कि हम तेरी प्रस्तिश कर सके, हमने तेरे कलाम को सीखा और सुना। ऐ खुदावंद, जब हमने आज तेरे कलाम में से एक बाबरकत बाप और एक बाबरकत इंसान के लिए असूल सीखे हैं, तो ऐ खुदावंद तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम इन असूलों को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरी मानिंद ऐ खुदावंद हम बनने वाले हो सकें। हम अपने ख़ानदानों के लिए मिसाल बने, नमूना बने। हम माशरे के लिए मिसाल और नमूना बनने वाले हों। सिर्फ़ और सिर्फ तेरा खौफ माने ऐ खुदावंद, बाहौसला रहें, वफ़ादार रहें, ताबेदार रहें और ऐ खुदावंद हमेशा अपनी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर करते रहें। ऐ खुदावंद, हम हर एक बरकत के लिए जो तूने हमें कसरत के साथ अनायत फरमाई है, तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज का कलाम, आज की प्रस्तिश ऐ खुदावंद तुझे पसंद आने वाली हो और इसके वसीला से ऐ खुदावंद बहुत सी रूहें मसीह यीशु के पास आने वाली हो सकें और ऐ खुदावंद हम हमेशा वफादारी से तेरे साथ, दयानतदारी के साथ तेरे साथ, तेरे खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले हों। जो लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद तो सबको सेहत कामिला अता फरमा। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से मुतासर हैं, ऐ खुदावंद तो सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। तमाम बापों को ख़ास तौर पर ऐ खुदावंद तो बड़ी बरकत दे। अपने बच्चों के लिए ऐ खुदावंद, अपने ख़ानदान के लिए, माशरे के लिए नमूना बनना सिखा। अपने साथ चलने का गहरा फजल दे। तेरे बेटे हमारे मुनंजी खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल कादर मुतलक जलाली नाम के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन।